अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साइबा तुरानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में जो एक नई डेवलपमेंट हुई है। इसराइल स्ट्राइक द कैपिटल ऑफ कतर दोहा टारगेटिंग द पॉलिटिकल ऑफिस ऑफ हमास. Major motive behind this attack was to assassinate the political leaders of Hamas, which were part of the negotiation process that is underway currently for the ceasefire in Gaza and to release the hostages. ऑल्दो कोई मेजर कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है हमास पॉलिटिकल लीडर्स की, लेकिन अभी तक 6 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 5 हमास के मेंबर थे और एक कतर का सिक्योरिटी गार्ड था. This act was very surprising, very reckless for the world because this time Israel did not attack Iran, it did not attack Yemen, Lebanon, or Egypt. Rather, it attacked the strongest and biggest US ally in the region, that is Qatar, home to the largest military base of United States. And more than anything else, Qatar was playing an unprecedented role in the mediation between Israel and Hamas, along with Turkey and Egypt. And bombing its capital while the negotiation process was underway is to undermine the diplomacy itself. Israel has once again violated the international law. It has breached the territorial sovereignty of a state, and Qatar is now the sixth state that is being targeted by Israel. Before this, it was Iran, Yemen, Lebanon, and it went into the war with Egypt, and now it's Qatar. So more than it was a military strike, it was basically a strategic earthquake for the rest of the world, particularly for the states of the Middle East. Also, United States claim that they had no idea about this attack, although they are not condemning the attack, but US says that they had no idea about it, and Trump on his X account tweeted that uh, this was an action taken by Netanyahu, and he had nothing to do with it. But the planes that were used were actually American-made 535 assembled in Israel, and the bases that were used were of Riyadh and Jordan without their knowledge. So, this is another big question mark on the security of these states while their bases are being used and they are completely unaware of it. So, in this video, we'll talk about that. What were the reasons for this strike? What could be its impacts on Israel now, on the region, and on the global diplomacy as a whole? How did the world leaders reacted to this, and what could be the potential outcome? To talk about reasons and motivation behind this attack, so immediate cause अगर हम देखें, मैं इसराइल क्लेम करता है कि अभी रिसेंटली जब जेरूसलम बस स्टेशन पर अटैक हुआ और उसमें 6 इसराइली को मारा गया, तो ये उसकी रिटेलिएशन थी, उसका बदला लिया गया. उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, अभी जो ये नेगोशिएशन टीम के मेंबर्स हैं, इसमें उसके मास्टरमाइंड्स हैं, सो दे वुड बी असैसिनेटिंग देम एंड टेकिंग द रिवेंज ऑफ दैट अटैक. उसके अलावा दे आर पुटिंग दिस प्रेशर ऑन द हमास पॉलिटिकल लीडर दैट नो मैटर वेयर दे आर इन द वर्ल्ड, दे आर अनसेफ एंड दे वुड बी टारगेटेड बाय इजराइल. एक ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव भी था, क्योंकि अभी इजराइल में इलेक्शंस होने वाले हैं और नेतन्याहू को जल्द से जल्द ये हॉस्टेजेस वाली डील करनी है, हॉस्टेजेस को रिलीज करना है, क्योंकि अगर वो ना हुआ तो उसका वोट बैंक कम हो जाएगा. ही वुड नॉट गेट द सपोर्ट दैट ही इज एक्सपेक्टिंग इन द अपकमिंग इलेक्शंस, and when he was not getting the desired outcome, so he did this attack. एक जो दूसरा रीजन था वो ये कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट, जिस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट किया, उस पर अटैक किया, और उसके रिस्पांस में ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री बेसेस जो कतर दोहा में है, उन पर अटैक किया. तो ईरान had already breached the territorial sovereignty of Qatar, and Israel, following the footsteps, would have thought that if Iran could do it, we could do it as well. So that was also one of the reasons. अगर impacts की बात की जाए, outcomes की बात की जाए, तो सबसे जो immediate outcome होगा, that would be end to the negotiation.
The Prime Minister of Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, while speaking to CNN, stated that Israel is just wasting time of the mediators. He said that Israel is leading Middle East towards chaos, and all of a region is currently at risk. He further stated that Qatar would be now reassessing and rethinking about its mediating role in the Gaza conflict. तो इससे ये काफी एविडेंट है, साबित होता है कि दे माइट बी विड्रॉइंग फ्रॉम दिस नेगोशिएशन प्रोसेस. उसके अलावा इसराइल ने हमास के पॉलिटिकल ऑफिस पे अटैक किया, एंड नाउ इवन हमास वोंट बी विलिंग for locking the deal or going into negotiations with Israel. उसके अलावा हमें एक इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी इस रीजन में. इससे पहले भी इसराइल बहुत ज्यादा स्टेट्स पर अटैक कर चुका. तो अगर टाइमली और प्रॉम्प्ट एक्शन ना लिया गया मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, ओआईसी के मेंबर की तरफ से, इसराइल इसी तरह अपने एग्रेसिव एक्शंस को एक्सटेंड करता जाएगा, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बियॉन्ड वाटर ले जाता जाएगा. आज दोहा था, कल रियाद होगा, फिर कायरो होगा, एंड वी डोंट नो वेयर इट वुड स्टॉप, बिकॉज इसराइल is not being treated how it should be. इसराइल कोई सॉलिड डिक्लेरेशन नहीं आ रही है, इकोनॉमिक बॉयकॉट्स नहीं हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है, बिकॉज नो बडी इज रियली टेकिंग एनी एक्शन. एंड दिस शुड हैव बीन अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द मुस्लिम लीडर्स, क्योंकि कल को उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट हो सकती है, उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच हो सकती है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है. And Israel is not just a threat to Middle East, it is a threat to the international peace. इस स्ट्राइक का जो एक दूसरा इम्पैक्ट है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी स्ट्रैटेजिक अलाइज हैं, मिलिट्री अलायंसेस हैं, चाहे वो कतर के साथ हो गए या बाकी स्टेट्स हो गए, उनको अपनी स्ट्रैटेजीज को रीशेप करना होगा, रीथिंक करना होगा, और अपने जियो स्ट्रैटेजिक अलाइज की रीअलाइनमेंट करनी होगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उनको प्रोटेक्शन नहीं गारंटी कर रहा, उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, एंड फॉर देयर नेशनल सिक्योरिटी एंड टू सिक्योर देयर बॉर्डर्स दे वुड हैव टू रीच आउट टू अदर स्टेट्स. और अभी करंटली उनके पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो चाइना, रशिया और पाकिस्तान ही हैं. पाकिस्तान, जैसे कि कतर प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टू ट्रेन दी आर्मी पर्सनल्स ऑफ कतर, और चाइना, रशिया से वो अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर सकते हैं. उसके अलावा हमें आर्म्स रेस देखने को मिलेगा. इसराइल के एग्रेसिव एक्शन से, उसकी स्टेट टेररिज्म से कोई भी महफूज नहीं है. It could attack on literally anyone at any time. So everybody would have to secure their borders, and for that they would involve in an intensified arms race. To conclude, we would say, to conclude, this attack was unprecedented. It was a massive development in this already going conflict, जो कि almost 2 साल से चल रही है. और अभी just in the days to come, we could only hope for a ceasefire. We could only hope for a better future for the people of Palestine, and for peace in Middle East and in the world as a whole. So I think this is all for today. I'll see you in another vlog. Allah Hafiz. एक जो दूसरा आउटकम देखने को मिलेगा, होपफुली दैट वुड बी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फॉर इसराइल. जो इवन यूरोपियन स्टेट्स हैं वो इस एक्ट को कंडेम कर रहे हैं, चाहे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, कनाडा कह रहा है कि वो रीएवैल्यूएट करेगा अपने रिलेशनशिप को इसराइल के साथ. उसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. अबू धाबी, दुबई की लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे हैव विजिटेड कतर and they have met with a prime minister of Qatar and have condemned this action. उसके अलावा Mohammed bin Salman has come in support for Qatar. Pakistan has joined Algeria and Somalia, and they have called for a emergency meeting of United Nations Security Council. So is सब situation, and even United States is not associating itself with the attack. Trump has tweeted that it was not my decision, it was Netanyahu's decision.
इस स्ट्राइक का जो एक दूसरा इम्पैक्ट है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी स्ट्रैटेजिक अलाइज हैं, मिलिट्री अलायंसेस हैं, चाहे वो कतर के साथ हो गए या बाकी स्टेट्स हो गए, उनको अपनी स्ट्रैटेजीज को रीशेप करना होगा, रीथिंक करना होगा और अपने जियो स्ट्रैटेजिक अलाइज की रीअलाइनमेंट करनी होगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उनको प्रोटेक्शन नहीं गारंटी कर रहा, उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, एंड फॉर देयर नेशनल सिक्योरिटी एंड टू सिक्योर देयर बॉर्डर्स दे वुड हैव टू रीच आउट टू अदर स्टेट्स। और अभी करंटली उनके पास जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो चाइना, रशिया और पाकिस्तान ही हैं। पाकिस्तान, जैसे कि कतर प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टू ट्रेन द आर्मी पर्सनल्स ऑफ कतर, और चाइना रशिया से वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें आर्म्स रेस देखने को मिलेगा। इजराइल के एग्रेसिव एक्शन से, उसकी स्टेट टेररिज्म से कोई भी महफूज नहीं है। It could attack on literally anyone at any time. So everybody would have to secure their borders, and for that they would involve in an intensified arms race. So to conclude, this was a massive development in the ongoing Israel-Hamas conflict, जो कि 2 साल से चलती आ रही है। So हमें कुछ बेहतरी देखने को नहीं मिल रही है। जब भी सीज फायर की बात होती है, इसराइल उसको वायलेट कर देता है, वो किसी और स्टेट पर अटैक कर देता है। तो हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वी कैन ओनली होप फॉर द पीस इन मिडल ईस्ट, फॉर द पीस इन पैलेस्टाइन एंड फॉर द पीस इन द वर्ल्ड एज होल. I think this was all for today. I'll see you in another vlog. Allah Hafiz.